So welcome everyone once again to this session. So in today's session, we have the chapter 4 of the Geography Class 6 NCRT. So let's get started without any further ado. So as you know, my name is Shashant, and let me tell you, I did BCom program from University of Delhi, and I'm teaching since 2015 in various offline institutes. And in this entire session, our focus is going to be on the foundation building and the value addition. ठीक है, and there would be extensive coverage as you already know. चलिए so start करते हैं. The chapter is the maps. This is the one of the very important chapter from administrative point of view. If you have to understand anything, a particular thing about a geographical location, so you should aware about the maps, right? So a map, what is a map? So a map is a representation or a drawing of the earth surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. So basically, if you want to understand a very simple language, a map is nothing. A map is a representation of earth, right? और a drawing of the earth surface, ठीक है? या फिर it is a part which is basically आप draw करते हो a flat surface पे according to a scale. हम देखेंगे what is the definition of a scale, what we are going to see what is the definition of a scale. ये चीजें हम सारी देखेंगे basically in our coming points. So map provide more information than a globe. ग्लोब में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है that maps provide more than that, right? When many maps put together, it forms a book which is known as atlas. तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि atlas में क्या होता है, you can find many maps, right? चलिए, so maps are mainly of three types, or you can say that the primarily maps are of three type. ठीक है? One is the physical map, the other is the political map, and the last is the thematic map, right? तो ये तीन तरीके की मैप आप देखोगे wherever you will see. So what is the physical map? First of all, let me explain you. So physical map basically that shows the natural pictures of the earth such as mountain, mountain, plateaus, plain, river, ocean, etc. are called the physical or relief map. तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि मैप शोइंग द नेचुरल बेसिकली फीचर्स. ठीक है, आपको फिजिकल मैप क्या दिखाता है? नेचुरल फीचर्स दिखाता है ऑफ द अर्थ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और ये नेचुरल फीचर्स क्या क्या होते हैं? सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस, एटसेट्रा. और इसी को हम फिजिकल मैप या फिर इसको रिलीफ मैप भी कहा जाता है. सो जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट कि आप इसको फिजिकल मैप को रिलीफ मैप भी कहते हो, एंड फिजिकल मैप शोज द नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ. फाइन. सो व्हाट इज पॉलिटिकल मैप? नेक्स्ट इज पॉलिटिकल मैप. So the map that basically shows the cities, towns, and villages and different countries and states of the world with their boundaries are called the political map. तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल मैप में? ये सारे मैप जो सिटीज टाउन्स वगैरह को दिखाते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बेसिकली यहाँ से याद रखना आप कि a map that basically shows the boundaries, ये ध्यान रखना, boundaries are called the political map. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज द थीमेटिक मैप. तो थीमेटिक मैप क्या होता है? सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. दिस मैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज, एटसेट्रा. और इसी को हम थेमेटिक मैप कहते हैं. तो अब आप स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो थेमेटिक मैप्स आर वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, व्हेन आई से इंपॉर्टेंट आई मीन टू से, जब आप पढ़ोगे कि डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिकली जब आप पढ़ोगे कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जैसे कि आपको किसी रोड का मैप देखना है, जैसे आपने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के बारे में सुना होगा, उसका देखना है. सो फॉर दैट आपको देखना पड़ेगा रोड मैप देखना पड़ेगा, राइट? तो ऐसे ही रेनफॉल के लिए आपको देखना पड़ेगा. रेनफॉल के लिए यू हैव टू सी द मैप कि आप देखो इंडिया में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कौन सा एरिया कहाँ पे कितना रेनफॉल होता है, कैसे होता है. जैसे कि आपको फॉरेस्ट देखना है, डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे है ना? तो वो सारी चीजों के लिए आपको थेमेटिक मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंडस्ट्रीज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे है, ठीक है? तो इसको विच इज कॉल्ड द थेमेटिक, विच इज कॉल्ड द थेमेटिक मैप, राइट? Suitable titles are given on the basis of information provided in these map. So there are three components of map. ठीक है, तो इसको हम जो कंपोनेंट होते हैं उसको डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल. किसी भी मैप में ये तीन चीज आपको मिलेंगे बिकॉज दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप. दीज आर थ्री कंपोनेंट्स ऑफ मैप, ये आपको मिलने ही मिलने हैं. ठीक है, टाइटल्स यू कैन गिव बट दीज आर दी थ्री बेसिकली कंपोनेंट, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल. तो याद रखिएगा, विल आइडेंटिफाई व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट इज डायरेक्शन एंड व्हाट इज सिंबल फर्दर. ठीक है, चलिए. So basically scale, चलो scale पे discussion करते हैं. So scale is the ratio, scale is nothing but it is the ratio between the actual distance and the ground, actual distance on the ground and the distance shown on the map. तो basically actual distance क्या है आपके ground पे,
और आपने मैप पे कितना डिस्टेंस दिखाया है। सो इसका जो रेशियो होता है उसको स्केल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई चीज़ आपने बनाया भी होगा पिक्चर्स में, जैसे 500 किलोमीटर को आप 5 सेंटीमीटर से डिनोट कर देते हो कभी कभी, है ना। तो ऐसे ही सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्केल, स्मॉल स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप। ठीक है, मैप दो तरीके के स्केल के बेसिस पे होता है, एक आपका स्मॉल स्केल मैप होता है, एक लार्ज स्केल मैप होता है। सो व्हेन लार्ज एरियाज, जैसे कि कोई कॉन्टिनेंट हो गया, कॉन्टिनेंट का मतलब कोई लैंडफॉर्म हो गया, है ना, कॉन्टिनेंट जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप एक्सेट्रा। ठीक है, और कंट्रीज आर टू बी सोन ऑन अ पेपर, जब आप पेपर पे दिखाते हो तो तब आप यूज करते हो स्मॉल स्केल को। जैसे कि आपने अपने स्केल से नाप लिया कि 5 सेंटीमीटर, आप लिख भी देते हो कि 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5,000 किलोमीटर और 500 किलोमीटर। तो इसी को हम क्या कहते हैं, आपका स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। ठीक है, बट व्हेन अ स्मॉल एरिया लाइक योर विलेज और योर टाउन, जैसे छोटे एरिया को जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो क्या दिखाते हो कि 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर, तो उसको हम क्या कह देते हैं, लार्ज स्केल मैप। सो डोंट गेट कंफ्यूज, ये स्केल है, दिस इज द कोऑर्डिनेट। आप जब आप कोई भी मैप देखोगे ना, वेन एवर यू सी एनी मैप, सो यू विल सी दैट, सो देर आर द डिस्टेंस इज मेंशन दैट दिस सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर किलोमीटर। ठीक है, और दिस मच अमाउंट, तो ध्यान रखना स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप, इतना इंपॉर्टेंस है इसका, इससे ज्यादा कुछ नहीं, दिस इज जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तीन कंपोनेंट्स में से द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट इज द डायरेक्शन। व्हाट इज डायरेक्शन? सो दे बेसिकली देयर आर फोर मेजर डायरेक्शंस, नॉर्थ, आई एम सो सॉरी, where it is, yeah, so north, south, east and west, they are called the cardinal points. तो याद रखना, these are called the cardinal points. So cardinal points are what? North, east, south, west, इसको हम cardinal direction भी कहते हैं। ठीक है, other four intermediate directions are north east, south east, south west, north west। तो ये हमारे डायरेक्शन होते हैं आपके अदर इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, राइट। अब जैसे कि ये आप, यू कैन सी दैट दिस इज द कंपास, लेट मी वेट फॉर फ्यू सेकंड्स, या हाँ, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये क्या है आपका, देखो, दिस इज द कंपास जो आपको डायरेक्शन दिखाता है। सो दिस इज वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट फॉर डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन के लिए एक बहुत ही अच्छा कंपोनेंट है, ये आपको दिखाता है कि इन विच डायरेक्शन यू आर मूविंग, दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज द साउथ, जिधर आप जाओगे ये इधर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखोगे यहाँ पे कार्डिनल डायरेक्शंस मैंने दिखा रखे हैं, दिस इज द नॉर्थ साइड, दिस इज द साउथ, दिस इज द ईस्ट, दिस इज द वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। देखो, आप सब में से जितनों को भी अगर डायरेक्शन से लेकर के कोई भी प्रॉब्लम है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक बार इंडिया का मैप निकालें और उसमें ट्राई टू फिक्स कि कौन से स्टेट्स आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, कौन से स्टेट आपके साउथ ईस्ट में आते हैं, कौन से साउथ वेस्ट में आते हैं, कौन से नॉर्थ वेस्ट में आते हैं, कौन से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ में आते हैं। तो इससे क्या होगा, यू विल हैव दी क्लैरिटी। ठीक है, चलिए, तो डायरेक्शन से पता चल गया आपको क्या होता है बेसिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव द सिंबल, द सेकंड कंपोनेंट। सो आई थिंक हियर आई हैव रिटन द थर्ड कंपोनेंट, वाइज वर्सा विल कंसिडर दैट ऑल्सो, क्योंकि हमने स्केल देख लिया वहाँ पे। जैसे कि इफ यू कैन सी, देखो अगर हम थोड़ा बैक जाके दिखाऊँ मैं आपको, सो व्हाट आई हैव मेंशन इज डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। मैंने ये चीज़ें बताई थी आपको। ठीक है, तो जब मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो यहाँ पे स्केल मैंने आपको बता दिया, डिस्टेंस, डिस्टेंस आई थिंक आई मिस्ड हियर, और बेसिकली सिंबल हो गया यहाँ पे। सिंबल के बाद आपका, चलो, तो सिंबल की बात करते हैं। तो डिस्टेंस इज नथिंग, डिस्टेंस वो आपके डायरेक्शन में ही कवर हो गया। कैसे? बिकॉज व्हेन आई से हियर इन स्केल आई हैव कवर्ड दिस। ठीक है, सो डिस्टेंस में बेसिकली होता क्या है कि पर्टिकुलर डिस्टेंस, है ना, कि 500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, हाउ यू शो दैट इज अकॉर्डिंग टू द स्केल। ठीक है, द सेकंड कंपोनेंट वाज द डायरेक्शन एंड द थर्ड कंपोनेंट इज द सिंबल। सो व्हेन आई से सिंबल, सो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। आई एम सो सॉरी फॉर दिस, या, सो दिस इज द थर्ड कंपोनेंट ऑफ अ सिंबल। और मैप हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। देखिए ये चीज़ बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये जो दो नेक्स्ट पैराग्राफ है ना, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाई ऑल। यानी कि व्हेन आई से मैप, तो वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है उसके पास, जो सब समझ सकते हैं। सो देर इज अ इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ये ध्यान रखना है, ये इसीलिए बोलते हैं कि एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ दीज सिंबल्स। यानी कि मैप के अंदर जो आप सिंबल्स को यूज करते हो ना, उसके लिए भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन दी कंट्रीज, राइट। सो दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल्स। तो यहाँ पे क्या चीज याद रखने वाला है, देर इज अ इंटरनेशनल एग्रीमेंट फॉर कन्वेंशनल सिंबल्स। ठीक है, याद रखिएगा। वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पज। ठीक है, जैसे कि आप जनरली ब्लू यूज करते हो वाटर बॉडीज को दिखाने के लिए। ठीक है, ब्राउन यूज करते हो आप माउंटेन के लिए, येलो यूज करते हो प्लेट्यूज के लिए, और ग्रीन यूज करते हो प्लेन्स के लिए। तो ये हम मैप में करते हैं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास प्लान। एक प्लान क्या होता है? तो प्लान जब हम बोलते हैं, तो एक प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। जब आप एक छोटे एरिया को लार्ज स्केल पे ड्रॉ कर देते हो, जैसे आपने उड़ी देखा होगा, तो इन डिफरेंट मूवीज यू हैव सीन दैट कि एक पर्टिकुलर एरिया का मैप वो कैसे बनाते हैं।
छोटे से घर का, छोटे से ग्राउंड का, वो मैप बड़े लेवल पे बना के वहाँ अपनी प्लानिंग करते हैं कि हमें यहाँ से अटैक करना है। ठीक है, वी हैव टू अटैक फ्रॉम हेयर, वी हैव टू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस प्लेस, ऐसा ऐसा चीज़ें। तो वो प्लान होता है। स्केच क्या होता है? तो स्केच इज अ ड्राइंग। बेसिकली वो क्या होता है? बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन, राइट। तो जो आपका स्केच होता है वो मेमोरी पे बेस्ड होता है। जैसे आप देखते हो ना पिक्चर्स में, जब किसी को अरेस्ट करते हैं तो आपको बोला जाता है कि या प्लीज आप रिकॉल करो कैसा दिख रहा था वो चोर। तो सिंपली यू कैन इमेजिन, यू कैन लर्न द डेफिनेशन ऑफ स्केच विद द हेल्प ऑफ दैट आल्सो। ठीक है, सो समटाइम्स रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड फॉर एन एरिया टू टेल वेयर द पर्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड। ठीक है, आपने बोल दिया कि मैं उस जगह पे गया था जहाँ पे एक वॉल था, देयर इज एक चौराहा था, चौराहा के जस्ट बगल में एक वॉल था। ठीक है, वॉल के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे थे, तो आपने ऐसे, सो दिस इज कॉल्ड द रफ ड्राइंग। तो इसी को हम क्या कहते हैं? स्केच कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज द कन्वेंशनल सिंबल दिखा रहा है आपका। देखो रेलवे लाइन अगर आप देखते हो तो ऐसे दिखाया जाता है आपका, ब्रॉड गेज आपको ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, मीटर गेज आपको ऐसे दिखाया जाता है, और रेलवे स्टेशन को आप ऐसे डिनोमिनेट करते हो। ठीक है, इन अ सिमिलर फैशन रोड्स को, अगर मेटल्ड रोड है मतलब पक्का रोड है तो ऐसे दिखाओगे, कच्चा रोड है तो ऐसे दिखाओगे मैप में। ठीक है, बाउंड्री, बाउंड्री अगर इंटरनेशनल बाउंड्री है तो आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। स्टेट बाउंड्री शुड बी like this, or district boundary should be like this. तो अगर if you have the any map, if you have any map, so find it out. अगर atlas है तो very good, just open it and try to relate it with that, right? River can be shown like this, well can be shown like this, sorry, in black. ठीक है, well can be shown like this one, black one. ठीक है, आपका जो टैंक होगा वो आप ऐसे दिखा सकते हो, कैनल को आप ऐसे दिखा सकते हो, ब्रिज को आप ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अगर आप सोसाइटी की बात करते हो, एक सोसाइटी में टेम्पल है तो ऐसे दिखा सकते हो आप, चर्च को ऐसे दिखा सकते हो, मॉस्क को ऐसे दिखा सकते हो, एंड आप छतरी है तो ऐसे दिखा सकते हो। ठीक है, सिमिलरली कुछ इन्फॉर्मेशन की बात कर लें तो पोस्ट ऑफिस शुड बी पीओ, आपका पोस्ट टेलीग्राम ऑफिस शुड बी पीटीओ, टेलीग्राफ ऑफिस, एंड पुलिस स्टेशन शुड बी पीएस, राइट। ऐसे ही अगर हम बात करें सेटलमेंट वगैरह की, तो सेटलमेंट जहाँ पे मतलब लोग रहते हैं उस एरिया को मैप में ऐसे दिखाया जाएगा। ठीक है, ग्रावयार्ड वगैरह होगा तो उसको ऐसे दिखाया जाएगा। ठीक है, ट्रीज होगा, ट्रीज, तो ट्रीज को आप ऐसे दिखा सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रीज, एंड ग्रासेस आर लाइक दिस। सो दिस इज कॉल्ड द कन्वेंशनल सिंबल। यही है इंटरनेशनल ट्रीटी। एज पर इंटरनेशनल ट्रीटी अगर कोई मैप है तो उसको अगर आप उसमें ये सारी चीजें डालोगे तो एनी वन कैन फाइंड इट आउट, जिसको उसके बारे में पता होगा, राइट। ठीक है, कोई लेमैन को तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए मूविंग फॉरवर्ड फास्ट। ये देखिए आई हैव टेकन एग्जांपल फ्रॉम दिस। जैसे कि आपका ये देखो टेलीग्राफ ऑफिस, आप स्कूल हो गया, आपको पता चल रहा है पुलिस स्टेशन इज देयर। ठीक है, द नेम इज, दिस इज द टेंपल, यू कैन से दैट, I guess the temple or the chhatri was there. ठीक है, then we have, ठीक है देखो here we have the, the trees are there, the settlement is there. I'm so sorry for this, the settlement is there, right. अगेन दी वाटर बॉडीज, तो देखो यहाँ पे नॉर्थ करके दिखा रखा है डायरेक्शन, तो ये सारी चीजें होती है। रिवर इज ऑल्सो देयर। ठीक है, ग्रेवयार्ड इज देयर, चर्च इज देयर, सिमिलरली यू कैन फाइंड इट आउट मैनी थिंग्स इन द गिवन मैप, राइट। चलो, सो इन दिस सेशन आई हैव नॉट इंक्लूडेड एनी एमसीक्यू बिकॉज आई डिड नॉट फील दैट कि कोई एमसीक्यू यहाँ पे बन सकता है, बट आई थॉट वो टाइम वेस्ट होगा। सो लेट मी कम डायरेक्टली टू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस व्हिच वाज ऑफ ह्यूज डिमांड इन द पास्ट। ठीक है, सो व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट ऑफ अ मैप? यू कैन राइट इट डाउन हियर in the comment section. The distinguish between the map and a plane, कि what is the difference between a map and a plane? ठीक है, क्या होता है basically? Here I mean to say plan, it is not a plane. Here I mean to say plan, कि map और plan के बीच में क्या difference है basically. ठीक है, how do symbols help in reading map? मतलब symbols हमें क्यों, कैसे help करते हैं एक map, किसी भी map को read करने में, वो भी यहाँ पे बहुत बहुत important है। चलिए, तो इतना ही था आज के लेक्चर में। So guys, I would like to say one more thing about this session. जैसे कि first of all, thank you so much for this. Yeah, so what has happened basically in last from few days I was not able to record videos on time, so that is why today I am uploading both the videos, राइट। तो एक वीडियो ये है और एक और आई गेस पहले ही अपलोड हो चुका है, तो आप देखिए जाइए। तो अभी तक हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, और इन द कमिंग वीक और द टुमारो आई विल बी अपलोडिंग 1 or 2 more videos of the class 6, and I would love to finish this class 6 NCERT in this week only, or in this week only I'll be starting from the next NCERT, right? So अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, so I would like to say you please subscribe our channel, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, और लाइक कीजिए। इफ़ यू हैव एनी सजेशंस, एनी रिकमेंडेशंस फॉर अस, so please write it down in the comment section below. And if you wanted to, like, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वी हैव अ टेलीग्राम चैनल, देर इज अ पोस्ट, द पोस्ट इज इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, इन सब क्लासेस का पीडीएफ यू कैन फाइंड इट आउट देयर ऑल्सो। ठीक है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली देयर फॉर योर पर्सनल गाइडेंस, राइट। सो टेक केयर, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।